इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है मैंने कुत्ता या बिल्ली पाल लिया, नहीं, इट इज़ जस्ट अबाउट उनकी सही तरह से परवरिश करना। वो फ़र्क है, पालना और परवरिश में बहुत फ़र्क है। हम वांट्स में सर्व करते रहते हैं, एक नया बेड लेके आ गए, 1,500 टॉयज़ लेके आ गए, इतनी सारी चीज़ें लेके आए, बट हम फिर भी कंफ्यूज है कि अरे ये डॉग टाइल पे क्यों सो रहा है। 9 to 5 वो डॉग ने क्या किया, उसकी लाइफ का क्या, आर वी द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर आवर डॉग। The needs of the pet parents as well as the animals who really cannot communicate to us. जो शिट्ज़ूज़ है या कोई जो फैंसी ब्रीड्स है वो कुछ नहीं करते और जो स्ट्रे डॉग्स है वही काटते हैं। Correct. ऐसा नहीं होता। कोई भी मिसअंडरस्टूड डॉग ही काटेगा क्योंकि वो डॉग को नहीं पता क्या करना है। So these dogs are always the confused ones, the misunderstood ones, the ones who have been hurt or abused, not the ones who are just stray dogs. Right. Not all humans are dog lovers and not all dogs are human lovers. Hello and welcome to Be Aware of Animals, a podcast even your companion animal wishes you would not miss. Hi, I'm Amit, your host for this podcast. And I am Divya Sambhavani, canine behaviorist and co-founder of All Ears for Animals. Let's start by telling our audience the uddesha and the purpose of this podcast. A lot of times, especially at least when I was younger, I was always told, beware of dogs, you know. अगर डॉग या कैट बाजू में आए तो थोड़ा दूर से चलो, उनके मुंह मत लगो, वो काट लेंगे, बिल्ली स्क्रैच कर लेगी, से बहुत डर बिठा दिया था मन में. But as we grew older, we realized that our animals don't have an ulterior motive. All they want is to coexist, is to be understood. This is so important. So being aware is very important. Correct. A lot of times in this generation, people want to help animals, but उन्हें पता नहीं है कि करे कैसे. तो aid और action के पहले awareness आता है. Right. That's the reason why Be Aware of Animals is an initiative where you and I are helping parents understand how to raise better dogs, how to raise better companion animals. So on this podcast, we are going to have different experts, experts from veterinary, Correct. from grooming, from even understanding animal laws, how to take better care of our dogs. All these things will be covered so that pet parents are able to truly understand what it's like to have a dog. जस्ट बिकॉज हम डॉग को घर लेके आते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो एक कमोडिटी की तरह होता है कि Right. हमने ब्रीड खरीदा, मेरे दोस्त के पास शिट्ज़ू था तो मुझे भी शिट्ज़ू चाहिए तो मैंने शिट्ज़ू ले लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये डॉग की नीड्स क्या है. हम वांट्स में सर्व करते रहते हैं, एक नया बेड लेके आ गए, 1,500 टॉयज़ लेके आ गए, इतनी सारी चीज़ें लेके आए, बट हम फिर भी कंफ्यूज है कि अरे ये डॉग टाइल पे क्यों सो रहा है. हमें समझ ही नहीं है कि उन्हें रेस कैसे करना है. This is so Which true. is when Be Aware comes into the picture. Be Aware बस एक simple concept है of increasing the awareness level of every animal lover in this country. ताकि कल आगे मेरे सामने कोई ऐसा डॉग है who is injured or who needs my help, at least I will know what to do. Or if tomorrow I decide that I would like to extend my love to a companion animal and adopt a rescue or adopt someone who has lost their home, then at least I know for a fact that I know how to take care of that being, give justice to him. जो 12-15 साल की फैब्युलस लाइफ वो हमारे साथ जीते हैं, उनको हम जस्टिफाई करें, ना कि बस इसलिए क्योंकि हमारे लाइफ में एक वॉइड है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो डॉग मेरी या वो कैट मेरी वॉइड फिल करे. जैसे कि अगर मैं सुबह उठूँ तो मेरा गाल पूरा लिक करे बिकॉज आई वॉन्ट टू फील लव्ड, या तो मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो आई वॉन्ट टू फील आई वॉन्ट टू गेट एक्साइटेड कि मेरा डॉग ना मुझ पर जंप कर रहा है, शोइंग एक्साइटमेंट. आई फील गुड व्हेन आई सी समवन लव्स मी. व्हाट अबाउट दैट डॉग? आप तो 9 o'clock ऑफिस के लिए निकल गए, 5 o'clock वापस आए, Whole 9 to day 5 it has to spend. 9 to 5 वो डॉग ने क्या किया, Right. उसकी लाइफ का क्या. आर वी द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर आवर डॉग. लेकिन आई अंडरस्टैंड वेयर पेट पेरेंट्स ऑल्सो कम फ्रॉम. उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि हम डॉग को लेके कहाँ जाए, क्योंकि जब लेके जाते हैं तो डॉग्स बाक करते हैं या कभी अटैक करते हैं और या तो दूसरे डॉग्स के साथ नहीं जमता, तो देन दे गेट वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन. तो इसलिए पॉडकास्ट लाइक दिस, having experts on this platform will help them understand that society में dogs को coexist कराना, cats को coexist कराना, it's not just कि ठीक है मैंने कुत्ता या बिल्ली पाल लिया, नहीं, it is about उनकी सही तरह से परवरिश करना. वो फ़र्क है, पालना और परवरिश में बहुत फ़र्क है. I'm really very excited. In fact,
काफ़ी समय से मैं भी सोच रहा था दैट आई शुड गेट अ पेट होम, जी, बट यू नो आई ऑलवेज थिंक दैट टेकिंग केयर ऑफ अ लाइफ is a big responsibility, एब्सोल्युटली, and that it cannot be taken for granted. एब्सोल्युटली। Yeah. So I think this is a great platform where we can discuss जी, the needs of the pet parents as well as the animals who really cannot communicate to us in their correct. simple language. See, actually, it's great that you said this, Amit, because like how you always say that as a host, you're representing a common man. Right. जैसे आपको सिखाया गया, अरे ये बेजुबान है, Hmm. अरे ये मासूम जानवर है, इसे क्या पता, ये बेचारा है, इसे मदद की ज़रूरत है। बट Actually, that's हमारे the yeah. बट हमारे एनिमल्स बेचारे नहीं हैं, वो Hmm. फुल्ली कैपेबल है। जहाँ वो 12-15 साल की बहुत अमेजिंग ज़िंदगी जीते हैं रोड्स पे, Right. और कोई टेंशन नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम उन्हें घर लेके आते हैं और हमें पता ही नहीं कि उन्हें रेस कैसे करना है। Hmm. तो एक्चुअली इफ वी थिंक अबाउट इट, दे आर नॉट वॉइसलेस, दे स्पीक, इट्स जस्ट दैट दे डोंट स्पीक इन अ लैंग्वेज वेयर वी अंडरस्टैंड। Correct. तो वो अपने टेल से कितनी सारी बातें कह लेते हैं। Hmm. वो अपने एक सिंपल, उनके प्यूपल्स डायलेटेड होते हैं, हमें पता चल जाता है कि दे आर फीलिंग एंशियस। इतनी छोटी सी फ्लिकर ऑफ अ चेंज इन देयर बॉडी लैंग्वेज, एनी एक्सपर्ट कैन सेंस दैट अ डॉग इज़ नॉट फीलिंग न्यूट्रल इन हिज माइंड। बट ये सारी चीज़ें पेट पेरेंट्स नहीं समझ पाते। तो हमारे बहुत ऐसे टाइम्स हुए हैं जहाँ पे हमने पेरेंट्स को जब ट्रेन किया, हमने रियलाइज़ किया कि अगर डॉग बार्क कर रहा है तो पेरेंट अफेक्शन दे रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट डॉग को थोड़ी ना समझ आ रहा है, उसे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी विद कम्युनिकेशन। अरे बताओ कि वो जो सामने से डॉग चल के जा रहा है लीश पे, जब मैं यहाँ चल रहा हूँ, वो थ्रेट नहीं है। मैं तो मेरे हिसाब से बार्क करूँगा जो मुझे सही लगता है। तो ना डॉग गलत हो गया, ना पेरेंट गलत हो गया। And when we open all our five senses, eyes, nose, ears, everything, and we truly observe our dogs, observe our cats, फिर हम realize करेंगे यार ये तो कितना बात करते हैं, बस हम ही सुन नहीं रहे थे। वो अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं। इवन when it comes to verbal commands, look how beautifully our dogs communicate through barking, through whimpering, whining, growling, ये सब तो सिर्फ बात करते हैं। Our cats, हाउ दे मियाओ, उनका हर एक मियाओ एक अलग वे में साउंड करता है। अगर वो Wow. पेन में है तो उनका एक अलग मियाओ आएगा, अगर वो एक्साइटेड है तो मियाओ अलग आएगा। उनकी टेल भी कितनी कम्युनिकेट करती है। अगर आप कैट की टेल देखोगे स्ट्रेट होती है, लेकिन अगर टिप से थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, दैट मीन्स दे आर इन अ गुड मूड। अभी ये इतनी छोटी सी चीज़ भी हमें ऑब्जर्व करनी Exactly. How पड़ती do है। you एक monitor that? 5% का चेंज भी हमें समझ आ जाता है कि अ कैट इज़ इन अ वेरी डिफरेंट मूड। Our animals communicate with us all the time. It is just for us to listen, to be all To be yours. able to decode, yeah. Yes. So this is very important what you just shared. जी, और आपको जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली बचपन से लेकर अब तक टिल वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, हमारा भी कुछ बिहेवियर और रिस्पॉन्स ऐसा ही होता था जी, कि पेट को देखते ही आपके मन में एकदम ऐसा चीयर्स वाला फीलिंग आता है, और स्ट्रेस डॉग को देखते ही आपका हाथ या तो पत्थर की तरफ बढ़ता है या किसी लकड़ी की तरफ। ये ये क्या साइकोलॉजी है इस चीज़ के पीछे? ऐसा माइंडसेट क्यों होता है लोगों का? देखो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता, वो फियर के साथ पैदा नहीं होता है। राइट। वो फियर उसकी बॉडी में डाला जाता है। और जो हमारा पेरेंटिंग होता है, वेदर दैट इज़ इन स्कूल टीचर्स सिखाते हैं, या तो घर पे पेरेंट्स सिखाते हैं, या नेबरहुड सोसाइटी में जैसे रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मिंग आवर ओपिनियन अबाउट समथिंग। करेक्ट। अब अगर मैं मेरी चाची के घर पे गई, मामी के घर पे गई, उनके घर पे शिट्ज़ू है या चाची के घर पे रिट्रीवर है, तो मुझे क्या सिखाया जाता है कि अरे ये तो क्यूट क्यूट से डॉग्स है, इनको तुम छू सकते हो, इनको तुम पेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे सिखाया जाता है अरे डॉग्स से प्यार करो, डॉग्स तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे क्या समझ, राइट? बट अगर मैं वही रास्ते पे चल रही होंगी और मेरे सामने से स्ट्रे डॉग आ गया, तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी ये बोल के कि अरे स्ट्रे डॉग तुम्हें काट ना ले। राइट। अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एज अ चाइल्ड आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मुझे तो सिखाया गया कि हर डॉग से प्यार करो। करेक्ट। फिर जब स्ट्रे डॉग के पास जा रही हूँ तो मुझे क्यों उठाया जाता है? तो ये सवाल मेरे मन में ज़रूर आएगा। फिर मैं क्या करूँगी, मैं दूसरों को देखूँगी, बड़े क्या कर रहे हैं, तो मेरे बड़ों को मैं क्या देखूँगी, वो लोग चिल्ला के डॉग को भगा देते हैं, पत्थर दिखा के डराते हैं, डंडा लेके घूमते हैं। तो मैं भी वो सेम चीज़ इमिटेट करने लगूँ, क्योंकि Correct. मेरे लिए सही गलत बुरा भला क्या, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। हम्म। तो वो पेरेंटिंग, वो सीख हमारे से आनी चाहिए। दैट मीन्स एज एक्सपर्ट्स हु आर गाइडिंग पेट पेरेंट्स, एट द सेम टाइम नॉट जस्ट पेट पेरेंट्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डॉग्स नहीं है बट दे वुड लाइक देयर चिल्ड्रन टू बी एनिमल फ्रेंडली। तो Certainly. वाई नॉट हेल्प देम अंडरस्टैंड
देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो शिट्ज़ूज़ है या कोई जो फैंसी ब्रीड्स है वो कुछ नहीं करते और जो स्ट्रे डॉग्स है वही काटते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। हुँ, कोई भी मिसअंडरस्टूड डॉग ही काटेगा क्योंकि वो हुँ, डॉग को नहीं पता क्या करना है। सो दीज़ डॉग्स आर ऑलवेज़ द कन्फ्यूज़्ड वन्स, द मिसअंडरस्टूड वन्स, द वन्स हू हैव बीन हर्ट और अब्यूज़्ड, नॉट द वन्स हू आर जस्ट स्ट्रे डॉग्स। तो वो जो हमने एक सेग्रीगेशन बनाया है एज़ अ सोसाइटी वो बहुत गलत है। सो इन ऑर्डर टू चेंज दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब पेट पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉग से मिलाते हैं तो इन दैट टाइम दे नीड टू मेक श्योर कि वो समझे कि वो सामने वाले डॉग को कंफर्टेबल है कि नहीं। दैट स्ट्रे डॉग शुड बी ऑल्सो बी कंफर्टेबल। इफ दैट स्ट्रे डॉग इज जस्ट गार्डिंग हिज टेरिटरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग, हुँ, सो डोंट थिंक दैट ऑल डॉग्स आर कडली कडली। राइट। नॉट ऑल ह्यूमंस आर डॉग लवर्स एंड नॉट ऑल डॉग्स आर ह्यूमन लवर्स। ये So एक सिंपल essentially, फंडा है। essentially, you are saying that it is very important for every person to have this basic understanding about our environment and the lives that exist in our Yeah. environment, and not just take them आप for ये granted. इमेजिन कीजिए ना कि हमारे डॉग्स को अगर बोले अरे आई लव ह्यूमंस, मुझे तो बहुत पसंद है, रास्ते में एक ह्यूमन चल रहा है उसके ऊपर जाके जंप कर दिया, उसको Hmm. जाके किस कर दिया, आप क्या बोलोगे? अरे भाई मुझे नहीं पसंद, ये क्या Hmm. कर रहे हो? तो सेम वे हमारे डॉग्स भी तो वही रिएक्ट करेंगे ना कि Correct. अरे तुम्हारे घर पे लैब्राडोर है तो तुम मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो, राइट? सो आई वांट माय पर्सनल स्पेस. So we have to understand consent. If the dog comes to you, if the cat comes to you, fair enough, sure. आप खाना खिलाओ ना. Love has different forms. Right. You can do different things. You can teach your children to feed animals. How you don't have to expect love in return. You are just doing a good deed. So True. teach your children to be kind and compassionate to animals. Love बाद में आता है, पहले compassion आता है. Beautiful, yeah. I'm thoroughly enjoying this, and I'm very excited to see what comes next. So before we move ahead, why don't you share a little bit about yourself, your journey, and how did All Ears for Animals come into existence? So it's quite an interesting story, I would say. When I was much younger, मतलब आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी, आई यूज़ टू वर्क एट द कॉर्पोरेट, बट वहाँ पे ना मुझे मज़ा नहीं आता था। मेरा हमेशा से मानना था कि अगर भगवान ने हमें ब्लेस किया है विद द बेस्ट लाइफ, विद द बेस्ट एमिनिटीज़, सो देन वी शुड रैदर एक्सटेंड दोज ब्लेसिंग्स टू द वंस हु नीड आवर हेल्प, हु नीड आवर असिस्टेंस. Sure. It is not about the fame or the power that we hold. It is about how we can be of helping hand to someone. Hmm. So that's when I realized that animals is something that I feel very strongly about. So that's when I started looking out for different options. क्या कर सकते हैं animals के Okay. साथ, कैसे काम कर सकते हैं. And I had this whole thing in my mind कि I don't like humans, I only like animals. तो मुझे तो सिर्फ animals के साथ ही काम करना है. Humans बड़े mean होते हैं, उन्हें trust नहीं कर सकते. All of these things that a lot of us face. इसलिए a lot of times we end up Right. running to the animals saying कि अरे एटलीस्ट ये तो हमारा दिल नहीं तोड़ते, you know, like that. Correct. तो आई रैन अराउंड लुक्ड फॉर थिंग्स, और तब मैंने सोचा कि अच्छा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डॉग ट्रेनिंग कर सकते हैं, डॉग ग्रूमिंग कर सकते हैं, और तभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं होता था. सो देन व्हाट आई डिड वाज मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी. And then I found this one trainer in Mumbai and I told her I want to go meet her. So then she called me home और मैं गई थी 100 questions लेके. एक फ्रेल सी टीनेजर उसके घर पे गई, 100 ऐसे questions. questions लेके गई थी जहाँ पे should I go to this university, should I go here, should I go there. I rang the doorbell, I entered her house. Her golden retriever came and excitedly jumped on me and I fell down. तो वो खुद ही हंस पड़ी मुझ पे. वो बोली तुम एक रिट्रीवर को नहीं हैंडल कर सकती तो तुम एक अग्रेसिव सेन बर्नार्ड को कैसे ट्रेन करोगी. तुम ट्रेनिंग बहुत इजी है अगर तुम टेक्निक सीख लो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम कहाँ वो टेक्निक अप्लाई करोगी. That is very important. So that's when she said you need to go volunteer at a shelter. You need to learn about animals in order to truly serve animals. Right. And that one line changed my life. So I started my journey with Animals Matter to Me Mumbai. It's a wonderful shelter in Malad. When I was working there, we had over 300 dogs and over 200 cats. All are rescued, abandoned, abused in the worst of the conditions. And how wonderfully I was given that opportunity to just serve them. मैं हमेशा ज़िद करती थी मम्मी पापा को कि अरे मुझे भी डॉग चाहिए, मेरी फ्रेंड के पास है तो मुझे भी चाहिए. बट आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने कभी मेरी ज़िद पूरी नहीं की, क्योंकि अगर वो मेरी ज़िद पूरी करते ना तो मैं बचपन में डॉग लेती और मुझे लगता कि मुझे डॉग के बारे में सब आता है. लेकिन जब मैं AMTM में कदम रखी तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ कुछ नहीं आता. मुझे तो बिस्किट खिलाने भी नहीं आता था.
तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा बिस्किट भी ऐसे खिलाते हैं, ऐसे नहीं खिलाते डॉग खींच ओह! लेगा, ऐसे खिलाते हैं, यहाँ रखते। इतनी छोटी छोटी बात भी मुझे सिखाई गई थी। तो जब मैंने वो धीरे 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 करके सीखा, तो आई रियली अंडरस्टूड what it's like to be with animals, what it's like to truly serve them, listen to them, understand them। तब जाके फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग से सिर्फ बात नहीं पूरी होगी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग ट्रीट्स और ट्रिक्स नहीं होता, हुँ, ट्रेनिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर डॉग्स एंड सर्विंग देम द राइट वे। वो होता है ट्रेनिंग। लाइफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट ये सिखाना ज़रूरी है। ट्रिक करके मुझे क्या मिलेगा? मेरा डॉग रोल ओवर करेगा, ट्रीट के साथ बैठ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? बट अगर मैं मेरे डॉग को इन द मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन स्टे कहूँ और वो वहीं रहे, हुँ, और मैं वो इमरजेंसी को टैकल करके वापस आ सकूँ और वो वहीं रहेगा, दैट इज़ दैट इज़ ट्रस्ट। इम्पोर्टेंट। दैट इज़ ट्रस्ट। तो वो सीखने के लिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डन। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज ग्लैड दैट आई वाज अ ब्लैंक स्लेट, आई वाज लाइक एन एम्प्टी वाज। और फिर मुझ में चीज़ें डाली गई और तब मैं बहुत खुश थी, बिकॉज आई ट्रूली लर्नड फ्रॉम द एनिमल्स। हु बेटर टीचर्स इन दिस वर्ल्ड दैन द एनिमल्स देमसेल्व्स। आई हैव नेवर हैड अ पेट, बट मुझे हमेशा डर लगता है व्हेनेवर आई एम ऑन अ रोड, वो जो स्ट्रे डॉग्स बैठे रहते हैं एंड जी। पीपल आर ड्राइविंग अराउंड देम वेरी रैशली, हम्म। तो आई ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू हैव देम मूव ऑन द साइड, करेक्ट। serve them water, feed them, or contribute for their medication, their treatments via friends or वंडरफुल। NGOs. I think this is the least we can do, and it's a small act of kindness. Yeah, of course. And when you say kindness, kindness is nothing but love. And love is unconditional. ये डॉग्स हमें कहते हैं क्या, मुझे घर लेके जाओ, मैं बेचारा हूँ। Right. नहीं, वो उनका घर है। हम उनको स्ट्रे डॉग करके बुलाते हैं, बट वो स्ट्रेस थोड़ी ना है, वो तो अपने घर में ही रहते हैं। भगवान ने उनको वही तो घर दिया है। हम उनको क्यों कहते हैं? दे आर गार्डियंस, रक्षक की रक्षा। ये हम ऑलियर्स में ये बिलीव करते हैं, बिकॉज हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। कैसे? उनको खाना दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। कभी ऐसे है जो now we all can see how the weather is, how the environment has become Right. with the traffic, with the construction। कभी थोड़े नहीं ढूंढ पाते हैं खाना, Hmm. तो तब उनकी मदद करना एक बहुत नोबल चीज़ है। True. बट घर पे लेके आना, चार दीवारों में बंद करना, दैट इज़ नॉट what they are looking for। So Right. it's not necessary that you have to own a dog or you have to own a cat to truly love them. You can love them anyway। I love that statement of yours कि let's not call them strays because they are in their natural environment. In fact, जो मेरा next question है वो भी इसी context में है कि how did this idea of adopting pets come into existence in India? अगर आप स्टडीज़ देखें, रिसर्च देखें, तो आप रियलाइज़ करेंगे अब लोगों को बच्चे नहीं चाहिए, अब लोगों को डॉग्स ही चाहिए। Very true. Yes. तो उसमें हम अगेन सही गलत बुरा भला के डिबेट में जा ही नहीं रहे। Absolutely. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ डॉग्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन एनिमल्स पर्सपेक्टिव, कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस, वुड दे लाइक टू बी रेज्ड दिस वे। Hmm. जब हम पहले के ज़माने में रहते थे, जैसे कि हमारे परदादा के ज़माने में, यू नो, फोर फादर्स, एकदम थोड़े और पीछे चले जाएं, तो तब डॉग्स कहाँ थे? तब कैट्स कहाँ थे? तब वो Right. खुला घूमते थे, वो बिल्कुल। उनका स्पेस रहता था। व्हाट इज़ देयर पर्पस गिवन बाय गॉड? टू गार्ड, Guard and टू protect. प्रोटेक्ट, Yeah. टू मेक श्योर दैट चोर नहीं आए। चोर कैसे? हम कहते थे कि अरे चोर नहीं आएगा, ये एरिया में ना डॉग्स है। Correct. तो वो चोर को पता रहता था कि अरे ये डॉग यहाँ एरिया को प्रोटेक्ट करता है। या कभी हमारे आंगन में एक डॉग होता था, वहाँ पे हम बाहर रखते थे बिवेयर ऑफ डॉग। Right. तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो यहाँ चोरी नहीं कर सकते। Hmm. तो एक बहुत स्पेसिफिक वे होता था। Right. अब का सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है। नाउ द वर्ल्ड लुक्स एट एनिमल्स वेरी डिफरेंटली। अब वो एक वॉइड है ना हार्ट में, कि मैं, नो वन लव्स मी, ओके माई डॉग लव्स मी, आई डोंट नीड एनी वन Hmm. बट माई डॉग, दैट्स इट, माई डॉग एंड आई आर द वर्ल्ड। येस, बट वो चीज़ आप डॉग से भी पूछिए, इज दैट ओके विथ योर डॉग? बिकॉज देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स राइट इन अ डॉग्स लाइफ। वो Correct. हमारी इमोशनल इनकेपेबिलिटीज़ या हमारे अंदर वो वॉइड पूरा करने नहीं आया है। Right. उसके पास और बहुत सारी और चीज़ें हैं विच ही नीड्स इन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम जस्ट लविंग अस। नहीं तो अगर मैं आपको बोलूँ कल आप काम वगैरह सब छोड़ दो और सिर्फ अपने डॉग के साथ रहो 24 घंटा, इट विल बिकम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। You will after some point say, I need some human connection, because your species is very different. We have to understand whether are we coming from a source of love or from attachment. And with respect to the question जो आपने कहा कि where did this concept come from? Hmm. वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉग्स को घर लेके आने वाला कॉन्सेप्ट, कि अच्छा वो घर Hmm. में खरीद रहे, कैसे टाइप के ब्रीड्स ले रहे हैं। अरे देखो ये शित्जू कितना अच्छा दिखता है, मुझे यूएस में जापानीज ब्रीड पालना है।
या अरे ये चाव चाव कितना अच्छा दिखता है, तो मुझे यूके में चाइनीज़ ब्रीड पालना है, तो हमने चाइना से इंपोर्ट करा, हमने जर्मन शेपर्ड अडॉप्ट करना मतलब खरीदना सीखा। ये सारे डिफरेंट ब्रीड्स, पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट देम फ्रॉम बेस्ड ऑन देयर लुक्स कि अरे रॉटवाइलर है ना बहुत फेरोशियस दिखता है, मेरी पर्सनालिटी भी बहुत फेरोशियस वाली, इसलिए मुझे रॉटवाइलर चाहिए। अरे बट डू यू हैव अ लाइफस्टाइल दैट कैन एक्चुअली गिव जस्टिस टू अ रॉटवाइलर? अरे वो मुझे बहुत रॉयल दिखता है, मुझे ये ब्रीड चाहिए। अरे शित्ज़ूस कितने क्यूट टेडी बेयर जैसे लगते हैं, मुझे वो ब्रीड चाहिए। तो वो लॉजिक आने लगा वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब हमने वहाँ पे देखा एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन इंडिया फ्रॉम द राइट वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट तो हमने भी ये करना शुरू किया। तो जो पहले ऐसा होता था कि एकदम जो हायर स्टार्टा होता था वो रखते थे, बंगलोज जिनके पास होते थे वो रखते थे डॉग्स। तो वो टाइम पे एक लैब्राडोर होना, गोल्डन रिट्रीवर होना, जर्मन शेपर्ड होना बहुत बड़ी बात थी एब्सोल्युटली कि अच्छा। और वो लोग रखते थे जिनके पास फार्म हाउसेस होते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉग को रखना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट अभी का ज़माना देखिए, अब हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारे लिए ही वो जगह इतनी क्रैम्प्ड होती है, वेदर इट इज़ 2 BHK, 3 BHK, इवन 5 BHK फॉर दैट मैटर। और अभी डॉग का लाइफस्टाइल देखो क्या हो गया है। डॉग हमारे साथ 4 दीवारों में रहता है, 2 बार नीचे वॉक पे जाता है, राइट 50% टाइम्स ऐसा होता है कि वॉकर ही लेके जाता है, क्योंकि हम काम पे बिजी होते हैं, तो आधा घंटा वो नीचे वॉक करके आ गया, बस बाकी की लाइफ क्या। एवरीथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। वो राइट कटोरी में खाना खाता है, जो हम खाना देते हैं वो खाता है। कभी मोस्टली ऐसे पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं होता तो पैकेज खाना देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन हाउ वी आर रेजिंग आवर एनिमल्स इन टुडेज डे एंड टाइम। तो ये सारा ना वो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से इमिटेट होके आया है। पहले के ज़माने से होता था कि डॉग्स आंगन से अंदर, घर में अंदर कदम नहीं रखते थे, रेयरली क्योंकि उनका करेक्ट काम ही नहीं था ना घर के अंदर। अब ये हो गया है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ तो मुझे चाहिए मेरा डॉग चिपक के बाजू बेड में के रहे, साथ में तो मेरा नेटफ्लिक्स देख रहा राइट हैंड ना बिजी होना चाहिए इन स्ट्रोकिंग माई डॉग, बिकॉज आई फील लव्ड जब मेरा डॉग यहाँ पे है। मेरा लेफ्ट हैंड मेरे फ़ोन को स्क्रॉल करे जा रही हूँ मैं रील्स में, और मैं सामने देख रही हूँ नेटफ्लिक्स, तो मेरा ब्रेन पूरा बिजी हो चुका है इस चीज़ में। बट आप डॉग के पर्सपेक्टिव से देखो, डॉग बोल रहा है मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन तो मिल ही नहीं रहा है, राइट माई पेट पेरेंट इज ऑलवेज बिजी, राइट। डॉग को क्या चाहिए? डॉग को चाहिए नेचर, मदर नेचर सबसे बड़ा हीलर इस दुनिया में। So are you saying that somewhere knowingly or unknowingly we are humanizing dogs or animals? 100%। कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे डॉग को वॉशरूम में ही सुसु कराना है, बट दैट इज़ सो अननेचुरल फॉर अ डॉग। Right. डॉग के लिए एक वॉक का ही तो एक ज़रिया होता है कि चलो एटलीस्ट मैं बाहर गया, मैंने मदर नेचर से कनेक्ट किया, आई फील ग्राउंडेड टू द सरफेस। बट उसमें भी हम शूज़ पहना देते हैं। सो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते कि कहाँ हमारे डॉग को एक्चुअली हम ह्यूमनाइज कर रहे हैं इन Right. दीज थिंग्स। Beautiful, I think. And this applies to, I feel, all the species. Nobody would want to live in restrictions Yeah. and, in a compartmentalized Yeah. way of life. करेक्ट। So ये जो एक point अभी आपने mention किया that, this entire thing has been imitated from what happened in the West, जी right? But Western world में there are a lot of facilities for animals and pets to roam around, to live their lives freely, right? जी In comparison with India, I believe that यहाँ पे भी कुछ चीज़ें grow कर रही हैं, but Correct. we are still far behind. So करेक्ट। how does it, then affect our companion animals or our pets?